New Hope TV, your encounter with God. You know, if there's anything that determines your success in your life, देखिए आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जो आपकी कामयाबी को तय करती है, it's the wisdom of God in your life. वो है परमेश्वर की बुद्धि आपकी जिंदगी में। It's not only your personality, of course, that's important. और सिर्फ आपकी व्यक्तित्व नहीं, जी हाँ, ये मायने रखती है। But you see, it's the wisdom of God working in you and through you that determines how far you go in your life. लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर की बुद्धि जो आपके अंदर और आपके जरिए काम करती है, वही ये तय करेगी कि आप अपनी जिंदगी में कितने दूर तक जाएंगे। There are three ways to receive the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि ग्रहण करने के तीन खास रास्ते हैं। Or rather wisdom, not wisdom of God, but wisdom. Let's put it this way. चलिए परमेश्वर की बुद्धि नहीं करेंगे, लेकिन उसके बजाय बुद्धि कहेंगे। The first one, पहला है you make mistakes. आप गलतियां कर बैठते हैं, You make mistakes, आपसे गलतियां होती हैं, you fall, आप गिरते हैं, you learn, आप सीखते हैं, you fall again, फिर से आप गिरते हैं, you learn. फिर से सीखते हैं। People in the world call it experience. और दुनिया में के लोग इसे अनुभव नाम देते हैं। They worship at the altar of experience. और ये देखिए वे अनुभव के ही वेदी पर जो है लगे रहते हैं They swear by experience. और अनुभव की वो शपथ खाते हैं। They revere people who have experience and nothing wrong with that. और देखिए जिन लोगों के पास अनुभव है उनको वो ऊंचा दर्जा देते हैं और इसमें कोई खराबी भी नहीं। But the matter of truth is that the people understand that this person has it all. He has made mistakes, he has messed up, but then somehow he has survived and he has come so far. That's why they call it experience. लेकिन मायने ये रखता है कि वो व्यक्ति जो था वो गलतियां किया, वो फिसल के गिरा, फिर वो उठ खड़ा हुआ और किसी न किसी तरीके से इतनी दूरी तक आ गया है और इसी को हम नाम देते हैं अनुभव। Experience is not such a wonderful teacher. और ये अनुभव जो होता है ये अच्छा शिक्षक नहीं है, It's painful. ये दर्दनाक है। You have wounds all over you. आपके पूरे शरीर में आप देखते हैं अपने ऊपर घाव पा लेते हैं। And there is another way to get wisdom in your life. और दूसरा तरीका होता है अपने जिंदगी में बुद्धि को पाने का, It's having a mentor. ये होता है किसी गुरु के जरिए। So you see, तो आप देखते हैं what is a mentor? और ये प्रशिक्षक कौन होता A है? mentor is a person whom you learn from. और प्रशिक्षक वो व्यक्ति होता है जिससे आप कुछ सीखते हैं। If you have a mentor, अगर आपके पास कोई प्रशिक्षक हो you don't start from the ground, you start from his shoulders. तो आप जमीन से शुरू नहीं करते, आप उसके कंधों पर से शुरू करते हैं। If you have a good mentor in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा प्रशिक्षक होता है you आपके don't पास, have to stand, you don't have to start from ground zero, you start from his or her shoulders. Come on, तो somebody. आपको शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने प्रशिक्षक के कंधों पर से शुरू करना पड़ेगा। That's how it is. और आप देखते हैं इसी तरीके से You होता don't है। have to know it all. आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, You need to have a mentor. आपके पास एक प्रशिक्षक होना You चाहिए। want to learn to pray, अगर आप प्रार्थना करना सीखना चाहते you हैं, need to have a mentor आपके पास एक प्रशिक्षक होना who चाहिए can teach you how to pray. जो आपको सिखा सके कैसे प्रार्थना की You don't जाती है। have to do all the mistakes and then after 20 years and you arrive and say, oh, now I learned to pray. और देखिए आपको वो सारी गलतियां करके 20 साल के बाद उठ खड़े होकर नहीं कहना ओ अब मैं सीख गया हूं प्रार्थना करने। You want to grow in the prophetic, अगर आप भविष्यवाणी के इस वरदान में बढ़ना चाहते हैं you need a mentor. तो आपको प्रशिक्षक की जरूरत है। You need to grow in business, अगर आप व्यवसाय में बढ़ना चाहते हैं you need a mentor. आपके पास एक प्रशिक्षक होना चाहिए। I've been studying the lives of many people, not only biblical characters, but people in the world, in the business field, in the education field, and everyone, those who went far and made a mark, they had a mentor. मैंने बहुत सारे लोगों के जो शख्सियत पर मैंने अध्ययन किया है और सिर्फ बाइबल में के लोगों के ऊपर ही नहीं और जो परमेश्वर के जन हैं उन्हीं पर नहीं, लेकिन जो सांसारिक दुनिया में भी जो कामयाब हुए हैं उन सब पर मैंने अध्ययन करके ये पता लगाया है कि उन सब के पास कोई ना कोई सिखाने वाला प्रशिक्षक रहा है। The second thing, दूसरी चीज please write this down. लिख लीजिए, Everyone needs a mentor. हर किसी को प्रशिक्षक की जरूरत होती है। You know, there are some lonely birds. और देखिए कुछ अकेले पंछी होते हैं, Lonely birds. अकेले पंछी, They come, वे आते हैं, they go, वे जाते हैं, they come, वे आते हैं, go, जाते हैं and nobody hears of them. और कोई नहीं सुनता उनके बारे में। They are lonely gypsies. वे अकेले रहने वाले जिप्सी हैं। No problem with gypsies, but you see, God never made us to be alone. How और many देखिए listening जिप्सी right में now? कोई खराबी नहीं, लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर ने कभी भी हमें अकेले रहने के लिए नहीं बुलाया है। You have to be connected to somebody. आपको किसी न किसी से जुड़े रहने की जरूरत है। Everybody needs a mentor. हर किसी को प्रशिक्षक की जरूरत है। Luke chapter 8 verse 1. लूका का 8वां अध्याय उसका पहला Now it वचन। came to pass afterward that when Jesus went through every city, every village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव गांव में प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। And the 12 were with him.
और वे 12 उसके साथ थे। I believe the 12 were 24/7 with Jesus. और मुझे पूरा यकीन है वे 12 लोग 24 घंटे 7 दिन यीशु के साथ रहते थे। They ate with Jesus. और वे यीशु के साथ खाते They थे, talked with वे Jesus. यीशु से बातचीत करते थे। They were doing everything with Jesus. You see, they were like a team. Touch somebody and say, every time they were with Jesus. और देखिए वे एक टीम के जैसे थे और वे हमेशा यीशु के साथ रहते थे। They understood how he prayed. और उन्होंने समझ लिया कि कैसे यीशु प्रार्थना करते They थे। understood what he ate. और देखिए उन्हें सब कुछ समझ लेते थे। They were with Jesus. और देखिए वे यीशु के साथ थे। And this is what made the difference in their lives. और इसी बात ने उनकी जिंदगी में फर्क को लाया। Fast forward to Acts, book of Acts. और उससे जल्दी से आगे जाएंगे तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक में देखेंगे When they performed a miracle, जब उन्होंने आश्चर्य काम किया, the Pharisees and the Sadducees looked at them and said, these people, they look ordinary, they talk ordinary, but they are doing big things. I know why. Because they have been with Jesus. Somebody lift your hand and say जब amen उन्होंने right आश्चर्य काम now. किया था फरीसियों और सदूकियों ने उनकी ओर देखकर कहा ये मामूली दिखते हैं और ये मामूली इनका बोलचाल भी है, लेकिन इन्होंने अद्भुत काम किया है और हमें समझ में आ गया है क्यों इन्होंने इतने बड़े आश्चर्य काम को किया, क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। The disciples needed a mentor. आप देखते हैं चेलों को एक प्रशिक्षक की जरूरत थी। They were mentored by the Lord for 3.5 years and beyond, also through the Holy Spirit. हम देखते हैं प्रभु के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, उससे भी ज्यादा हम देखते हैं 3.5 साल से अधिक तो प्रभु के द्वारा, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार उनको प्रशिक्षण मिलता But रहा। you see, the mentoring of the Holy Spirit was only revision. लेकिन आप देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रशिक्षण दिया जाना वो तो सिर्फ दोहराया जाना था। Because you see, the Holy Spirit came to repeat, to revise everything that Jesus had taught them. Come क्योंकि on, आप देखते हैं somebody. पवित्र आत्मा आया था, हर एक वो बात जो यीशु ने उनको सिखाया था उसी को दोहराने के लिए। Examination time, we are talking about revision. Come on. और परीक्षा का जब समय आता है तब हम इस दोहराए जाने की बात को मान देते हैं। So you see, Jesus mentored the disciples for 3.5 years. तो आप देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को 3.5 साल तक प्रशिक्षण दिया था। Go with me to the book of Ruth, chapter 1 and verse 16, please. और निकालिए रूत की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 16वां वचन। But Ruth said, लेकिन रूत ने कहा, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. रूत ने कहा तू मुझसे यह विनती न करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, For wherever you go, क्योंकि जिधर तू जाएगी I will go. उधर मैं भी जाऊंगी। This is a daughter-in-law talking to a mother-in-law. और यहाँ पर हम देखते हैं एक बहू जो है वो अपनी सासू माँ से कह रही है। No longer it was mother-in-law, it was mother in grace. Come on now. Wherever you go, I will go. जहाँ कहीं तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, Wherever you lodge, I will lodge. जहाँ तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। He says, your people, your family shall be my family. तेरे लोग तेरा परिवार, मेरे लोग मेरा परिवार होगा। But you see many houses, come on. The mother-in-law's family is the mother-in-law's family. बहुत सारे घरों में सासू माँ का And परिवार, your सासू family माँ is your का family. परिवार होता है और आपका परिवार होता है। It's not his family and my family, it's our family. ऐसा नहीं होना चाहिए उसका परिवार मेरा परिवार, नहीं ये हमारा परिवार होना चाहिए। When I got married, I read this verse. I was preparing for marriage and I was, meditating upon the words. And I see, whenever you do something, you need to meditate on the word corresponding to what you're about to do. And this was one of the verses I read. Please, anybody preparing for marriage, highlight it, please. Important. जब कभी आप कुछ तैयारी करते तो जरूरी क्या वचन पर मनन करें और वचन के जरिए इस बात को पता लगा ले कि वचन क्या कहता है। अगर कोई शादी के लिए तैयारी करा देगा इस वचन पर मनन जरूर करना आपको। Marriage course 101. This is the first one, okay? शादी के कोर्स के लिए सबसे पहला चीज यही है। So your people shall be my people. तो तेरे लोग मेरे लोग होंगे And your God, my God. और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। You see, Ruth was not a believer in God, in the God of Israel. आप देखते हैं यहाँ पर कि रूत जो थी इजराइल के परमेश्वर में विश्वास करने वाली महिला नहीं थी। You see, Ruth was mentored by Naomi. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रूत को जो प्रशिक्षण मिला नाओमी से। Ruth submitted to the mentorship of Naomi. रूत ने अपने आप को नाओमी के अगुवापन के अधीन में सौंपा। Who is your mentor? आपका प्रशिक्षक कौन है? Who is teaching you? कौन आपको सिखाता है? Whom are you learning from? किससे आप कुछ सीख रहे हैं? You need to answer these questions. आपको इस सवाल का जवाब देने की If you जरूरत है। don't answer these questions, अगर इस सवाल का आप जवाब नहीं you देंगे are on dangerous territory. तो आप बहुत खतरनाक इलाके में फंसे हुए Because हैं। you can be influenced by anything and everything. क्योंकि किसी भी चीज का आप पर असर पड़ सकता है, कोई भी चीज, हर एक चीज का असर पड़ेगा। If you don't stand for something, you'll fall for anything. देखिए अगर आप किसी खास बात के लिए खड़े नहीं रहते तो हर एक बात में आप गिरेंगे।
If you don't stand for something, you will fall for anything. अगर आप किसी खास चीज के लिए खड़े नहीं रहते तो कोई भी चीज आपको गिरा सकती You है. need a mentor. आपको प्रशिक्षक की You जरूरत है. need a person in your life who can teach you, who can tell you to do the stuff that you need to do. आपको आपकी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको बता सके, जो आपको वो चीजें बता सके जो आपको करने की जरूरत है. You see, Joshua, आप देखते हैं यहोशू को, he had a mentor. उसके पास प्रशिक्षक था. His name was Moses. उसका नाम था मूसा. He's this man of God, Moses. और परमेश्वर का यह जन मूसा, They called him the man of God. और उन्होंने उसे परमेश्वर का जन नाम दिया. But Joshua, लेकिन यहोशू, he said, I want to serve this man of God. उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर के इस जन की मैं सेवा करना चाहता हूं. Joshua had a mentor. यहोशू के पास एक प्रशिक्षक था, That's why he did so many good things. और इसी वजह से उसने बहुत सारे बड़े काम किए. Elisha, एलीशा, he was a capable guy. और वो एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति था, He was in the field. और वो खेत में काम कर रहा था. Elisha was mentored by Elijah. एलीशा को प्रशिक्षक मिला था एलिया से. And you know what was the result? और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या निकला? Elisha walked in a double portion of the anointing. एलीशा जो था वो अभिषेक के दुगने भाग को लेके चला. You see, when knowledge is shared, it grows. आप देखते हैं जब समझदारी को बांटी जाती है तो ये बढ़ने लगता है. You see, sometimes you're scratching, you're scavenging for knowledge. You don't learn, you learn it the hard way. But there is an easy way to learn. It is called submitting to a mentor. आप बहुत मेहनत करते हैं समझदारी पाने के लिए, लेकिन एक सरल तरीका है समझदारी को पाने का, वो है आप अपने आप को एक अगुवे के, एक प्रशिक्षक के अधीन में सौंप देते हैं और उनसे सीखते हैं. Timothy was a learned man. और तिमोथी एक सीखने वाला व्यक्ति था. He was learned in the Greek school of philosophy and other things. और तत्व ज्ञान और दूसरे चीजों में यूनानी भाषा में उसने सीखा था. But when he saw Paul, लेकिन जब उसने पौलुस को he देखा, was not so good looking. और वो अच्छा खासा दिखते तो नहीं He थे, was not tall, dark and handsome. और ना ही वो लंबा कद काठी का या आकर्षक या रूपवान था, He was not that guy. और ऐसा व्यक्ति नहीं था वो. Somebody said, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वही बात तेरे को सुनाई देता, बाकी का नहीं सुनाई देता क्या? But he was a small guy. लेकिन वो छोटे कद का व्यक्ति था. Bible scholars say he was only 5 feet. और बाइबल के विद्वान लोग कहते हैं उसकी कद सिर्फ 5 फीट की But when थी. he looked at him, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा, he says, this is the man वो कहने लगा यही वो आदमी है that I need to submit to. जिसके अधीन में मुझे होने की जरूरत है. And Timothy all his life submitted to Paul as a son would submit to a man. और तीमुथियुस अपने पूरे जीवन भर पौलुस के अधीन में रहा जैसे एक बेटा अपने पिता के अधीन में रहता है. Everybody had a mentor. हर किसी के पास कोई ना कोई प्रशिक्षक था. They submitted to one another. उन्होंने एक दूसरे के अधीन में अपने आप को किया. Touch somebody and say, you need to be around a mentor so you can learn from him or her. किसी को छूकर कहे आपको प्रशिक्षक की जरूरत है, उसके आसपास रहना है ताकि उनसे आप कुछ सीख सकें. How to preach, कैसे प्रचार करना है, how to build a team. कैसे टीम बनाना Now है. many people, please don't get me wrong. और देखिए गलत मत समझिए. You see, God gave me a good education. और परमेश्वर ने भाई को अच्छी पढ़ाई लिखाई दी है. So when I came to the church, जब भाई कलीसिया में आए, so I thought I knew it all. और इन्होंने सोचा था कि मुझे सब कुछ पता है. Because just because you are an MBA in the world doesn't mean you can do it in the church, because the dynamics of the world are different from the church. देखिए क्योंकि आप दुनिया में MBA की डिग्री आपके पास है इसका मतलब नहीं आप कलीसिया में सब कुछ कर लेंगे, नहीं, क्योंकि दुनिया का जो तौर तरीका होता है वो कलीसिया में काम नहीं करेगा. There the people get a salary, so you tell them shut up and they are like, और वहां लोगों को तनख्वाह मिलती है, और अगर आप वहां पे लोगों से कहें चुप हो जाओ तो वे चुप रहेंगे. come here. इधर आओ. Yes sir. जी सर. But here लेकिन यहाँ they are volunteers. वॉलंटियर होते हैं. You do not have title leadership, you have relational leadership. वहां पर आप पदवी के मुताबिक उनका संबंध नहीं बनाते. यहाँ पर देखिए आप रिश्ता कायम करते हैं. That's what the difference is. यही तो फर्क लेकर आता है. Title leadership, और पदवी वाला अगुवापन positional leadership. और हैसियत वाला अगुवापन. Am I talking to somebody? क्या किसी से मैं कह रहा हूँ? Some of you are क्या बोल रहा है? I'm training the church. कलीसिया को सिखा रहे हैं इस वक्त. Because many of you will become managers and CEOs and क्योंकि आप में से बहुत सारे oh, मैनेजर CEO बहुत कुछ बनेंगे. you see, you will give a testimony this month. आप देखते हैं आप इस महीने में गवाही देंगे. This month you will come with your paycheck and my God, what is और इस this? महीने में आप अपना पेचेक लेकर आएंगे और कहेंगे अरे ये क्या है. Receive it, somebody. कोई लोग ग्रहण करे इस वक्त. If you are not receiving, mate, go to your neighbor, double. अगर Hallelujah. ग्रहण नहीं कर रहे तो होने दो, आपके पड़ोसी के पास जाए दुगने तौर पे. I am a man of God. It will happen. भाई Hallelujah. परमेश्वर जना ऐसा होगा. Lift your hand and shout your biggest hallelujah. अपने हाथों से चिल्लाइए हालेलुया इस You वक्त. see, positional leadership, और देखते हैं हैसियत वाला अगुवापन title leadership. और पदवी वाला अगुवापन. Hey, all of you, ए, तुम सभी लोग listen to me. मेरी सुनो. Why? क्यों? Because I have a position. क्योंकि मेरे पास हैसियत है. I'm the pastor. मैं पासबान हूँ. Oh, okay, we'll listen to you. ठीक है हम सुनेंगे. The moment you remove the title, जिस पद
जिस पल आप उनकी पदवी को निकालते हैं ना, nobody listens to the guy. कोई उस व्यक्ति की नहीं सुनता. That's positional leadership, title leadership. और आप देखते हैं ये हैसियत वाला अगुवापन है, ये पदवी वाला अगुवापन है. But when you have relational leadership, लेकिन जब आपके पास रिश्ते वाला अगुवापन होता है, I don't care who your title is, what your title is. I want to submit to you because I love you. I submit to you because I see your character. Somebody raise your hand and shout an amen, somebody. कोई अपने हाथ चिल्लाए आमीन इस वक्त. Two things. दो चीजें. First one, पहला है two ways to receive wisdom. दो तरीका बुद्धि पाने का. Second, दूसरा, everyone needs a mentor. हर किसी को प्रशिक्षक की जरूरत है. Say, I need a mentor. सभी लोग कहें मुझे प्रशिक्षक की जरूरत है. So I covered 2 points. तो दो मुद्दों पर चर्चा हो Two गई. ways to receive दो तरीका ग्रहण करने का, wisdom. बुद्धि पाने का. Second, दूसरा है, everyone needs a mentor. और दूसरा जो है हर एक को प्रशिक्षक की जरूरत है. The third point, तीसरा मुद्दा, the characteristics of a mentor. Now, this is really important. Don't miss it. प्रशिक्षक की खासियत क्या होती है, बहुत ही मायने रखता है, चुकेगा नहीं. Lift your hands as the Holy Spirit speak to me. अपने हाथ उठाकर बोले पवित्र आत्मा बात कर मुझसे. You see, many of you are going around in circles. आप देखते हैं आप में से बहुत सारे लोग बस चक्कर काट रहे हैं. Many of you think like, oh, I have arrived now. और बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा कि ओ मैं उस मुकाम पे पहुंच चुका हूं. No, sir. नहीं जनाब, There's always more in the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य हमेशा उससे भी ज्यादा There's रहेगा. more. Maybe you're a singer, there's more. Maybe you're a businessman, there's more. You're an executive, there's more. गायक हो Yeah. या व्यवसायिक हो या एग्जीक्यूटिव हो, देखिए ज्यादा से ज्यादा मुकाम प्रभु के राज्य में है. You're into fitness, there's something more. और फिटनेस के क्षेत्र में अगर आप है तो उससे भी ज्यादा मायने रखता है. When you walk, जब आप चलते हैं you're like a king. एक राजा जैसे हैं आप. When you move, जब हरकत करते हैं, oh, you enter that place. जब उस जगह पे कदम रखते हैं, Place changes. वो जगह बदल जाती है. That's you. ये है आप. Raise your hand and say, that's me. अपने हाथ लगा बोले ये हूं मैं. I prophesy every house that you will enter, every business you will enter, that place will change with the glory of God. भविष्यवाणी करते हैं, Raise your hand, हर एक receive जगह it. जहां आप कदम रखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए बदल जाएगी. Somebody shout a big hallelujah. कोई चिल्लाए जोर से हालेलुया. Say, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा, use me as an agent of change. और बदलावट लाने वाले एजेंट के रूप में मेरा इस्तेमाल कर. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Wherever you go, जहां कहीं आप जाते there हैं will be order. वहां पर व्यवस्था होगी. Wherever you go, जहां कहीं आप जाते हैं there will be prosperity. वहां पर समृद्धि आएगी. Wherever you go, जहां कहीं आप जाते हैं there will be peace. वहां शांति आएगी. Raise your hand and receive this in Jesus' name. अपने हाथों का ग्रहण करें यीशु के नाम में. Hallelujah. बोले हालेलुया. Lift your hand and speak in tongues, speak in tongues, speak in अपने हाथों का tongues. अन्य भाषा बोलिए. We seal it with the blood of यीशु Jesus. के लहू के द्वारा इसे हम बंद करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन. Characteristics of a mentor. प्रशिक्षक की खासियत, The first one. पहला है The right mentor can make a difference. एक सही प्रशिक्षक जो है वो फर्क ला सकता है. The right mentor can make a difference. और देखिए सही प्रशिक्षक जो होता है फर्क ला सकता है. Mentors are the difference between poverty and prosperity. और देखिए प्रशिक्षक जो होते हैं वही फर्क लाते हैं गरीबी और समृद्धि के बीच में. Mentors are the difference between decrease and increase. प्रशिक्षक ही देखिए फर्क है बढ़ोतरी और घटने के स्तर में, Deterioration and restoration. और पुनर्स्थापना या पूरी तरह से मिटा दिया You know, जाना. when I was learning, जब भाई सीख रहे थे, I was in school, college, I'm not sure. Somebody said, show me your friends and I'll show you how far you'll go. और किसी ने ऐसा पूछा कि मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी दूरी तक तुम जाओगे. But now I've rearranged this now. और मैंने इसे थोड़ा अलग से व्यवस्थित किया अभी. And I want to say this. और Show मैं ये me कहना चाहता हूं. your mentor and I will tell you your future. आप मुझे अपना प्रशिक्षक बताएं और मैं आपको आपका भविष्य बताऊंगा. Whom are you? Show me. Tell me whom you are learning from and I will tell you how far you will go. मुझे बताइए कि किससे आप सीख रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा कितने दूर तक आप जाएंगे. You learn from the wrong mentor, you will end up in disaster. अगर आप गलत प्रशिक्षक से सीखते हैं तो देखिए आप तबाही में आएंगे. You see, there are people today learning scriptures from just anybody. और देखिए आज ऐसे लोग हैं जो किसी से भी कहीं पर भी सीखते हैं कुछ भी. One person came to me and said, और एक व्यक्ति आकर कहने लगा, Pastor, all these gifts of the Holy Spirit are all over. और पासवान जी ये पवित्र आत्मा के सारे वरदान ये सब खत्म हो गए. I said, come, I'll tell you. मैंने कहा इधर आओ मैं बताता हूँ. What happened last week in your life? पिछले हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में क्या हुआ था. He said, my mother told you. और वो पूछना मेरी माँ ने आपको बताया. I said, I don't even know you have a mother. मुझे तो ये भी नहीं पता आपकी कोई माँ है. I said, Sonny, don't talk about the things you have never experienced. मैंने कहा देखिए उस चीज जिसको तुमने कभी अनुभव नहीं किया उसके बारे में बात मत करना. बाजू वाले को बोल, डोसा नहीं खाया तो डोसे पर रिव्यू मत लिख. So don't write a review on something you have not tasted, something you've not experienced.
तो देखिए, जिस चीज का आपने कभी स्वाद नहीं चखा, किसी उसका अनुभव नहीं किया है, तो उसके बारे में अपनी राय ना लिखें। You see, you learn from somebody, just, you go on YouTube, you go on Facebook, and they teach you something, and you're like, la, la, la. No, no, no. आप फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और वो कुछ आपको सिखाते हैं और आप बोलते हैं Somebody tells you, stop praying in tongues, and you're like, okay. और कोई आपसे कहता है अन्य भाषा प्रार्थना करना बंद करो, आप कहते हैं ठीक है। And yet the Bible says, Paul says, do not forbid speaking in tongues. और फिर भी बाइबल में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस ने कहा किसी को अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। Go and tell that to Prophet Ezekiel Francis, और जाकर भविष्यवक्ता एजेकियेल फ्रांसिस जी से बोलिएगा, who when he's taking a bath also like जब वे नहा रहे होते तब भी वो अन्य भाषा में बोलते रहते हैं। Go and tell your pastor, because when he's driving also is speaking in tongues. जाकर अपने पासवान जी को बताएगा, जब वे गाड़ी चला रहे तब भी वो अन्य भाषा बोलते हैं। Somebody lift your hand and shout hallelujah. हाथ चिल्लाएंगे हालेलुया। Tell me what happens after you pray in tongues. और मुझे बताइए कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद आप क्या होता है। A lady walks up on stage एक महिला आई मंच पे on Friday, शुक्रवार को, and she's a very simple looking और lady, एकदम सीधी सादी दिखने वाली औरत थी, and God started revealing to her everything about her life. और परमेश्वर की जिंदगी के बारे में सारी बातें जाहिर करने लगा। That's what happens when you speak in tongues. यही होता है जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, God starts revealing mysteries. परमेश्वर रहस्य को जाहिर करने लगता है। Raise your hand and shout hallelujah. अपने हाथों चिल्लाइए हालेलुया इस वक्त। How do you think this message was born? ओके, आप क्या सोचते हैं कैसे संदेश ने उत्पन्न हुआ होगा? All throughout the week you're praying in tongues. पूरे सप्ताह भर आप अन्य भाषा में प्रार्थना And करते रहे, suddenly God starts putting things into your spirit. और अचानक परमेश्वर आपकी आत्मा में चीजें डालने लगता है। Lift your hand and say, I receive it. अपने हाथों में बोले मैं ग्रहण करता हूँ। The right mentor or the wrong mentor, either it will be prosperity or disaster, you will go success or failure. और सही प्रशिक्षक या फिर गलत प्रशिक्षक, यही बात मायने रखेगी और फर्क लेकर आएगी। या तो आप समृद्धि में जाएंगे, या तो आप गरीबी में आएंगे, या तो कामयाबी में जाएंगे, या तो नाकामी में आएंगे। Pray for a good mentor. अच्छे प्रशिक्षक के लिए प्रार्थना करें। If you found one, अगर आपको कोई मिल गया है, stick to that well. उससे अच्छे से चिपके रहें। Samaritan woman was searching for mentors. और सामरी औरत जो थी वो प्रशिक्षकों को ढूंढ रही थी। She was not looking for sex, she was looking for a mentor. और देखिए, वासना के वो तलाश में नहीं थी, वो प्रशिक्षक की तलाश में थी। She was not looking for a boy, she was looking for a man. Hey! और देखिए, लड़के की तलाश में नहीं थी, वो मर्द की तलाश में But थी। every man abused her. लेकिन हर एक मर्द ने उसका गलत इस्तेमाल Every किया। man used her. हर एक मर्द ने उसका उपयोग किया। But then came फिर Jesus. यीशु आते हैं, He started talking things in her life. उसकी जिंदगी में चीजें बोलने लगते हैं, She saw something in this man. और उसने उस आदमी में कुछ खास And देखा, she went and told all the men, और जाके सभी मर्दों को बताया, look this देखो man. इस आदमी को, Look at this man. इस आदमी को देखना, He is different. ये अलग है। And she introduces this man to the whole village. और उसने उस आदमी का सारे गांव से परिचय कराया। She had never introduced any man even to her family, but this man she introduces to the whole village. Hey, देखिए, उसने किसी दूसरे मर्द का परिचय अपने परिवार से भी नहीं कराया था, लेकिन यीशु का परिचय उसने पूरे गांव से कराया। yes, you need to have a good mentor. जी हाँ, आपके पास अच्छा प्रशिक्षक होना चाहिए। When she said, this is the man, और वो कहने लगी, अरे यही वो आदमी है। she was there. वो थी वहां, She stuck to him. वो उससे चिपकी रही, She knew that he was bigger than Jacob's well. और वो जान गई कि यीशु जो थे याकूब के कुआं से बड़े थे। Hallelujah.